اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا خاص ورد اور وظیفہ کون سا ہے؟ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں آپ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے محبوب مرشد کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو بھی نوازا ہے یہ تو اللہ کی عنایت ہے، اس کے رسول کی مہربانی ہے، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے مرشد کریم کی۔ تو آج میں اپنا وہ خاص وظیفہ اور خاص طریقے سے پڑھنے کا راز اور خاص مرتبہ پانے کا راز وہ طالبین راہ سلوک کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ اب تک اس سفر میں چل رہے ہیں۔ راہ سلوک کے سفر میں، راہ سلوک کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کا پوشیدہ راستہ جو مقام نفس سے شروع ہوتا ہے، لطیفہ نفس سے ہو کر قلب میں داخل ہو کر پھر روح کی سیر کرتا ہے، روح کے بعد سری کے جہان میں اور پھر خفی کے مقام میں، پھر خفی کے بعد اخفا کی عروج پر اور اخفا کے بعد مقام انا یعنی ہویت کی ہا، وہاں پر جا کر جو بندہ یعنی میرے ساتھ وہاں پر تک انشاءاللہ تعالی سیر کرے ان کے لیے، اور جو طالبین ابھی سن رہے ہیں لیکن ان رستوں سے ناواقف ہیں کہ کیا خدا تک جانے کے بھی کوئی رستے ہوتے ہیں، تو بے شک ہوتے ہیں۔ انبیاء خدا تک گئے، اولیاء خدا تک گئے، اور خصوصاً جناب حضرت محمد رسول اللہ کی معراج خدا تک جو حضور کو لے کر گئی، اور باقاعدہ قرآن پاک میں سورہ معارج آسمان کے راستے، خدا تک جانے کے راستے، اس کے معنی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ پیغمبر گئے ہیں، کئی پیغمبر واپس ہی نہیں آئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، اولیاء اللہ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ معراج کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سفر عطا فرمایا۔ تو اسی راہ سلوک پر چلنے والے جو بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ سب کے لیے ان راہوں کو آسان فرمائے، کیونکہ خدا تک جانے کے راستے میں شیطان نہیں ہوتا، خدا تک جانے کے راستے میں فرقے واریت نہیں ہوتی، خدا تک جانے کے راستے میں کسی کو برا بھلا گالی گلوچ فتوے بازی کفر شرک کے فتوے بدعت کے فتوے وغیرہ نہیں ہوتے۔ خدا تک جانے کا راستہ بالکل عاجزی، انکساری، جھکا ہوا اور بالکل اللہ تک جانے کا ہوتا ہے، اور یہ بالکل آپ کو خدا سے واصل کر دیتا ہے۔ اور اس فقیر کو آیت الکرسی سے وہ مرتبہ ملا کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اگر کوئی عامل کہتا ہے کہ مجھ کو آیت الکرسی کی سمجھ آ گئی تو اس کے صرف دنیاوی لحاظ سے سمجھ آ گئی ہوگی، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت الکرسی حدیثوں میں بھی بہت موجود ہے کہ یہ چوری سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان سے آیت الکرسی محفوظ رکھتی ہے، بالکل حدیثوں میں موجود ہے۔ اور آیت الکرسی کا جو مرتبہ ہے وہ قرآن ہی ہمیں بیان کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اس کا نام ہی آیت الکرسی اور اس کو سید الآیات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ان سب کی یہ سردار آیت ہے، اور ویسی آیت کے معنی نشانی ہے، کرسی کے معنی اللہ کا عرش ہے، اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کے علم کی جو نشانی ہے وہ حقیقت میں آیت الکرسی ہے۔ اور عامل کامل حضرات تو یہ کہتے ہیں، بلکہ عارفین بھی یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم خدا کا پوشیدہ ہے،
जिस तरह के पहली आया मुबारक ही देख ले अल्लाह, अब ये पहला इसम आजम है अल्लाह, इसमें अल्लाह ज़ात है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, और हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब इरफान जो इस नाचीज़ के मुर्शिद कामिल हैं, साहब इरफान फरमाते हैं कि इसी एक आयत के अंदर पूरा अल्लाह ताला ने वो कुरान का भी इल्म समो दिया है और हर चीज़ का आयात इलाही का इल्म इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इसमें आज़म इसके अंदर है। जैसा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अब हु सुल्तान बाहू के नजदीक हु इसमें आज़म है। अल हय्युल कय्यूम, और बहुत से बुजुर्गान दीन कहते हैं या हय्यो या कय्यूम इसमें आज़म है। इसमें आज़म उसको कहते हैं कि जिस नाम से आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए मुस्तजाब के दरवाजे खोल देगा, यानी कबूलियत के दरवाजे खोल देगा। और जिसको इसमें आज़म मिल जाए, ये याद रखें, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हक बाऊ सच बाऊ फरमाते हैं, जिस बंदे को अल्लाह का इसमें आज़म नसीब हो गया, मिल गया, उसके ऊपर वारद हो गया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, वो बंदा वक़्त का कामल फ़कीर है बल्कि सुल्तानुल फुकारा है। उसके इरादे भी अल्लाह पूरे फरमाता है, दुआ तो भी दूर है, वो इरादे भी करे अल्लाह ताला पूरे फरमाता है, जिसके पास इसमें आज़म की कुंजी आ जाती है। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर दो जहान में वो फ़कीर गनी हो जाता है जिसके पास इसमें आज़म आ जाता है। और यही इसमें आज़म पाने के लिए बड़े बड़े आमलों ने बड़े बड़े चिल्ले किए हैं, बड़े बड़े वजीफे किए हैं, बहुत कुछ किया, किताबें भरी पड़ी हैं लोगों ने इसमें आज़म को तलाश करने में क्या कुछ कर दिया। लेकिन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आपने खोल दिया, फरमाते हैं आपने अपनी किताबों में लिख दिया, लोगों मैं जब इसमें अल्लाह ज़ात में, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब मैं अल्लाह के इसमें ज़ात में फनाक होकर बका हासिल की तो मैंने समझा कि मैं खुदा तक पहुंच गया। लेकिन खुदा तक जाने का वहां पर एक और रास्ता था, और वो था हु। मैं फिर हु की हुवियत में गया, तो जब मैं हु की हुवियत में गया तो वहां पर जाकर सवाए हैरत के कुछ भी नहीं था, यानी हैरत वो जो वहां पर पहुंचता है उसको ही पता है। अब आयतल कुर्सी की फजीलत, जो हकीकी फजीलत है, ये सिर्फ उसको पता होगी जो आयतल कुर्सी के मर्तबे तक पहुंचेगा, यानी आयतल कुर्सी का इसमें आज़म हासिल करेगा। क्योंकि अब जब तक किसी चीज की कुंजी हासिल नहीं कर लेते तब तक आप पर उसका कुफल खुलेगा ही नहीं, उसका राज खुलेगा ही नहीं, उसका पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर खजाना। मिसाल के तौर पर कोई ताबूत है, उसके अंदर कोई चीज है, उसको ताला लगा हुआ है, जब आप उसको खोलेंगे, संदूक खोलेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर क्या पोशीदा है। आयतल कुर्सी का इसमें आज़म जो है वो इसकी चाबी है, जब आप उसको खोलेंगे आयतल कुर्सी की हकीकत आपके सामने आ जाएगी और आपको आयतल कुर्सी के अंदर हर दो जहां की ताकत छुपी हुई मिलेगी। अल्लाहु अकबर। याद रखें, तौरात, ज़बूर, अंजील और जितनी वेदें और जितनी ग्रंथें और जितने भी मुकद्दस किताबें दुनिया में आई हैं, बिमा कुरान मजीद, बाकी साबका किताबों का, ये सूफिया औलिया कहते हैं, बाकी साबका किताबों के अंदर जो खुदा के पोशीदा ताकतें छुपी हुई थी वो सारी अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी में डाली हैं। आयतल कुर्सी के अंदर पिछले सारे जमानों की ताकतें अल्लाह ने आयतल कुर्सी में डाल दी हैं। यह इस कदर पावरफुल आयतल कुर्सी है कि बंदे को वली बना सकती है, बल्कि बंदे को मिराज करवा सकती है। हर दो जहान उस बंदा तालब आमल कामल आयतल कुर्सी के आमल कामल का गुलाम बन जाता है। हर जहान जिसके बंदे के पास आयतल कुर्सी की कुंजी कुलीद आ जाती है। अब इसके चिल्ले करने के तो तरीके, किताबें भरी पड़ी हैं, लोग चिल्ला करते हैं, 41 दिन पढ़ते हैं, 41 मरतबा पढ़ते हैं या 100 मरतबा पढ़ते हैं और 41 दिन तक इसका चिल्ला करते हैं। इसके लिए जिन्नात के ताबे करने के लिए ये बड़ा कामयाब अमल है, रूहानी तरक्की के लिए भी ये बड़ा कामयाब अमल है। आप कर सकते हैं, अगर आप रूहानी तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। पर लेकिन आयतल कुर्सी की असल फजीलत आपको तब समझ आएगी जब आप लतीफ़ा नफस को पार करेंगे, कल्ब में जाएंगे, कल्ब पे से जहान खुलता है, दरवाजा खुलता है, आप रूह के जहान में जाएंगे। फिर रूह इल्लीजीन मुकाम है, रूहों का जहान, वहां पर जाएंगे तो आप पर मुकाम सिर्री अल्लाह के राज खुलेंगे। उसके बाद लतीफ़ा खफी, खफी के बाद लतीफ़ा अखफा, अखफा में जाकर
आपको पता चलेगा अल्लाह के अर्श के इर्दा गिर्द मुकाम आयतल कुर्सी क्या है। अल्लाह के अर्श के इर्दा गिर्द जब सालिक उस मुकाम पर पहुंचता है तो उसको आयतल कुर्सी का लिबास पहनाया जाता है। इस फकीर की भी एक बात सुन ले के अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने जब आयतल कुर्सी को पढ़ा और मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस नाचीज को आयतल कुर्सी की हकीकत बयान की और इसकी फजीलत अता फरमाई और इसको पढ़ने का खास राज और इसके तसव्वुर करने का भी राज अता फरमाया, तो हर जहान का राज अल्लाह ताला ने खोलना शुरू कर दिया। और मुझको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम ने इसकी सैर करवाई और जब मैंने सैर की तो अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी के माला यानी वो जो जेवरात हैं वो आयतल कुर्सी के अता फरमाए, अंगूठी अता फरमाई जिस पर आयतल कुर्सी यानी ख्वाब के अंदर, बातन के अंदर, मुशाहदे के अंदर कि अल्लाह ताला किसी बंदे के जरिए, मुर्शिद पाक के जरिए आपको अंगूठी अता फरमाएगा, जेवरात अता फरमाएगा जिस पर आयतल कुर्सी कुदा होगी, नक्श होगी खूबसूरत तरीका से, और आपको वो जन्नत की आयतल कुर्सी का लिबास दिया जाएगा, जेवरात दिए जाएंगे, ताज दिया जाएगा, कड़े दिए जाएंगे, अंगूठियां दी जाएंगी। ये आपको मैं मुकाम अखफा की बात कर रहा हूं जब आप पर आयतल कुर्सी की सारी हकीकत वारद हो जाएगी। एक याद बात रखें, एक होता है पढ़ना, एक होता है आमल होना, एक होता है कामल होना, एक होता है आयत को अपने ऊपर वारद करके उसका मुसम्मा हो जाना, यानी उस आयत के अंदर जो जो अल्लाह ताला की शान, चाहे वो सिफाती हो या जाती हो, अल्लाह ताला अपने बंदे को जो उसमें फना होता है तलब रखता है, अल्लाह ताला उस आयत में से, उस सूरत में से, उस आयत में से अल्लाह ताला उस बंदे को उसके ज़रफ के मुताबिक अपनी सिफाती भी और जाती तजल्ली उस पर फरमाता है, यानी उसको हिस्सा अता फरमाता है उससे, और बंदे को आलिमुल गायब करता है, बंदे के बातन को जिंदा यानी हय्यो कय्यूम, बंदे का बातन हय्यो के नूर से भर देता है, यानी वो जिंदा हो जाता है, और उसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन अल्लाह ताला कर देता है, जिसको कभी मौत नहीं आती। रूह तो चाहे बरज़ख में मरने के बाद चली भी जाए, लेकिन वो जो आयतल कुर्सी से या अस्मा इलाही से आपके लताइफ जिंदा हुए होते हैं, वो कब्र में मौजूद होते हैं, वो अपनी इबादत, अपनी रियासत कर रहे होते हैं, वो खुदा के जिक्र में मशगूल होते हैं, रूह भी खुदा के जिक्र में मशगूल होती है। तो इसी तरह आयतल कुर्सी जाकर मुकाम अखफा में जब जाएंगे, तालिब सादिक जाएगा, वहां पर जाकर जब आपको पता चलेगा, आप देखेंगे खुदा का अर्श आयतल कुर्सी के नूर से मुनव्वर है। फिर आपको वो एक लिबास पहनाया जाएगा। हजरत सुल्तान बाहू ने लिखा, दिगर औलिया ने लिखा, और कुछ इस नाचीज का भी तजुर्बा है, कुछ अल्लाह ताला ने इनायात की हैं कि जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे, अखफा के मुकाम पर, अखफा कहते हैं जब बंदा अल्लाह ताला का हमराज बन जाता है। ये बंदा तब होता है जब बंदा अपने नफस को पाक करता है, फिर दिल को पाक करता है, फिर रूह को पाक करता है, इस तरह सारे जहानों की सैर करता है। तो अल्लाह ताला उसको लिबास अता फरमाते हैं, उस पूरे लिबास के ऊपर आयतल कुर्सी होती है, यानी वो जुब्बे के ऊपर, और सुल्तान अल फुकरा का ताज होता है, लिबास होता है जो अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है, और फिर आयतल कुर्सी की सारी फजीलत उस बंदे को अता फरमाता है, और फिर उसको जेवरात से तैयार करके अल्लाह ताला मुकाम वकाबा का हुसैनिया वदना उसको हुवियत की हाँ में ले जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारा जेवर आयतल कुर्सी का, जितने ये जन्नत में आप सुनते हैं कि जन्नतियों को जेवरात पहनाए जाएंगे, या फरिश्ते पहनते हैं, या हूरें पहनती हैं, या गिलमान पहनते हैं, ये सारे जेवरात आयतल कुर्सी के हैं। आयतल कुर्सी बंदे को माला माल कर देती है, आयतल कुर्सी गरीब को अमीर कर देती है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला कभी बंदा जाहिल नहीं रहता, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, आयतल कुर्सी पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह का कुर्बे खास मिलता है। यहां तक किताबों में लिखा है आयतल कुर्सी पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह का दीदार भी होता है। ये इतनी कामयाब यानी कह ले वो अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी है आयतल कुर्सी, और इसको इस फकीर ने बड़ा पढ़ा है। मेरे आज तक ये आयतल कुर्सी मेरे वजीफे में है। आप भी जो पढ़ना चाहते हैं, खुदा का कुर्ब पाना चाहते हैं, रसूल खुदा की जियारत करना चाहते हैं, एक कामयाब आमल कामल बनना चाहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बावजू होकर आयतल कुर्सी पढ़ते रहा करें।
फिर आयतल कुर्सी इतनी पढ़े कि आयतल कुर्सी का जो इसमें अल्लाह है पहला अल्लाहु, इसको अपने ऊपर वारद करें। माथे पर लिखें ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, सीने पर लिखें ला ताखुजुहु सिनातुम वला नौम, बाजू पर लिखें लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इधर लिखें मन ज़ल्ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु, पे कमर के ऊपर लिखे यालम मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना, सीने पर लिखें बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वासिया ये अरश दिल पर लिखें वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, नफस यानी मुकाम नाफ पर लिखें वला याउदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और फिर मुकम्मल खुदा की ज़ात में जाकर लिखें वहुवल अलीजुल अज़ीम, पूरा ये वहुवल अलीजुल अज़ीम, अपना पूरा वजूद इसमें अल्लाह ज़ात में और आयतल कुर्सी में फना करें और बका हासिल करें। और ये आप एक यानी कह लें सूरत भी बनाकर कर सकते हैं, जिसको मेरी किताबों में भी मौजूद है कि इसको शक्ल सुल्तानुल फुक़रा कहा जाता है, उसमें भी आयतल कुर्सी की आयात मुबारक हैं। आप एक खूबसूरत सूरत सुल्तानुल आरफीन क्या करते होते थे ये भी सुन लें। सुल्तानुल आरफीन एक सूरत बनाया करते थे आयात की, यानी आयतें लिख लिख कर बंदे की सूरत बनाते थे, फिर वही आयतों को अपने ऊपर वारद करते थे। यानी वो आयतें मुझ पर लिखी हुई हैं और मेरा जिस्म मेरा कलब रूह सारा खुदा के अस्मा के नूर में गुम है, और उस नूर की शुआओं से मेरा ये नारी वजूद नूरी बन गया है। बल्कि नारी वजूद को भी इसे निकाल देते थे, साथ पढ़ते जाते थे वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि ये झूठ है इसने भाग जाना है, सच ने आ जाना है। सच क्या है? अल्लाह का इसम जो बंदे के ऊपर आ जाता है। तो मेरे भाइयों ऐसे आप अगर आयतल कुर्सी कागज पर लिखकर बल्कि एक सूरत बनाकर फिर इस तरीके से भी आप अपने ऊपर वारद कर सकते हैं। चेहरा बनाकर उसके ऊपर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये फिर अपने ऊपर यही चीज को वारद करेंगे। सुल्तान बाहू ऐसा किया करते थे, इसलिए उनकी कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उनमें बड़ी बड़ी शक्लें बनी होंगी, बड़े बड़े रास्ते बने होंगे, बड़े बड़े मुकाम बने होंगे। कभी किसी चीज के वो सुल्तानुल आरफीन को जो चीज ज्यादा आपके ऊपर यानी नजर में आ जाती थी, दिल में आ जाती थी, नक्श बैठ जाता था, वो आप सरकार उसकी छवि बना लेते थे, फिर वो जल्दी नक्श हो जाती थी। तो इसी तरह आपके पास तो सुल्तान साहब की किताबें होंगी, नहीं है तो वो ले सकते हैं किताबें या नेट से भी निकाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों आयतल कुर्सी बंदे को इसमें आज़म अता करती है और आयतल कुर्सी बंदे को खुदा तक पहुंचा देती है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदे को ये याद रखें, रसूल खुदा ने भी फरमाया चोरी नहीं होती आयतल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाए, शैतान नहीं आता जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा दुनिया में गनी हो जाता है, अमीर हो जाता है, बेनियाज हो जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा जिस पर तवज्जो कर दे, अगर कोई कैदी है उस पर तवज्जो कर दे, वो उसको बरी करवा देता है। ये आपको आरफीन के कौल बयान कर रहा हूं, जो जिन लोगों ने आयतल कुर्सी की फजीलतें बयान की हुई हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा जिस बंदे को चाहे अपने साथ अर्शे मुअल्ला अखफाक पर ले जा सकता है। आज से आयतल कुर्सी को वजीफा बना लें, जिसका नाम ही आयतल कुर्सी है, तो क्या मुकाम होगा उसका। तो मेरे भाइयों इस फकीर का ये खास वजीफा था जो मैंने आपको आज बता दिया। आप भी अगर करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है। जो भी आयतल कुर्सी पढ़ेगा इंशाल्लाह उसको आयतल कुर्सी का फैज खुद बताएगा मैं क्या चीज हूं। आज से आयतल कुर्सी को जुबानी याद कर लें। अल्लाह ताला हमसे दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको आयतल कुर्सी की बरकत अता फरमाए और अपने मुर्शिद कामल का मरीद होकर अपने मुर्शिद कामल की खिदमत करके उससे ये फजूज़ बरकत हासिल करने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।